Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard, exercise 3.2c, example number 6. So you already know that is in exercise 3.2c there are 9 examples. So we start with the example number 6. So in this lecture we are going to see some different type of examples. In root x minus 7 upon x minus 9 dx. So in previous lecture we learned the example of type that is px plus q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इस पैटर्न के एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे. डिनोमिनेटर में रूट भी होता है, वैसे भी एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे. लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको रूट दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तभी वो इस टाइप जैसे लगेगा और हमको वो प्रोसीजर फॉलो करने होगी. तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसका जो स्क्वायर रूट है वो हम हटाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो x माइनस 7 न्यूमरेटर में है, तो x माइनस 7 से मैंने ये टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है. सो देयर विल बी नो एनी चेंज इन द एग्जाम्पल. Now here we get that is in root x minus 7 bracket square upon we taking the product of these two. So x square minus 16x plus 63. Now we removing this square root. So in numerator we see that is square root में square है तो इसका square हट जाएगा और ये x minus 7 upon root x square minus 16x plus 63 मिला. तो अभी ये जो एग्जाम्पल है वो हमें इस पैटर्न जैसा लग रहा है, सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है. तो ये भी पैटर्न हमने सीखा है. नाउ वी गोइंग टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस न्यूमरेटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू दैट इज x माइनस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63. जस्ट ओनली वी हैव टू टेक दिस क्वान्टिटी, डू नॉट टेक द square root, only write down this bracket plus b. So this is the format of the first step. So after that the numerator that is x minus 7 is equals to a into we taking the derivative of this one. So 2x minus 16 plus b as it is. Now we are going to multiply this bracket by a. So यहाँ पे हमें मिलेगा 2ax minus 16a plus b and x minus 7 is as it is. Now we going to equate the coefficients on both sides. तो यहाँ पे हमें x की टर्म दिखाई दे रही है, सेम x वाली टर्म लेफ्ट साइड में भी है. सो वी गोइंग टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. सो वी गेट हियर 2a इज इक्वल्स टू 1 एंड दीज आर द कांस्टेंट्स. सो माइनस 16a, नाउ सी माइनस 16a एंड यहाँ पे जो माइनस 7 है ये टोटल टर्म कांस्टेंट वाली टर्म है. सो वी just taking the numbers. So 16a plus b is equals to 7. So the value of a is now half. Now we are going to put down this value of a in this equation. So 16 divided by 2, so here we get 8 plus b is equals to 7, and so the value of b is 7 minus 8, that is minus 1. So यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिली है half and b की है minus 1. Now we are going to put down this in star equation. So instead of writing this numerator we are going to write this one. So integration of the value of a is half, so half d by dx of x square minus 16x plus 63 plus b, but the value of b is minus 1, so we are going to put down here that is plus into bracket minus 1. Now we are going to separate the denominator. अभी ये denominator हम इसे भी देने वाले और इसे भी देने वाले. Before that we take this constant term outside. So half d by dx of x square minus 16x plus 63 divided by x square minus 16x plus 63 in root minus now 1 upon root x square minus 16x plus 63 dx. So half into, now see the pattern here. तो ये जो pattern है वो हमने पहले भी पढ़ा था. That is whenever we see the pattern like this one, that is integration of f dash of x upon root of f of x, then the answer of this one is 2 root f of x. तो इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं. So we are going to take the answer of this one.
तो हमें क्या लिखना है, ये हाफ ऑलरेडी बाहर है वो हमने ऐसे लिखा। इसका जो आंसर है वो 2 रूट एफ ऑफ एक्स, और 2 रूट एफ ऑफ एक्स, तो ये रूट वाला जो क्वांटिटी वो हम ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे। माइनस नाउ सी यहाँ पे हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करने वाले, फर्स्ट 2 टर्म्स हम कंसिडर करेंगे एंड थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -16, सो 2 8s are 16, 8 स्क्वायर दैट इज 64। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसके बाद हम 64 ऐड करेंगे, ये जो 63 ऐसे लिखेंगे और 64 जैसे ऐड किया वैसे हमने वो सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो अभी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 अपॉन रूट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म दैट इज 8। सो x माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर ये हम एक्सपांड करेंगे तो हमें ये 3 टर्म्स मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे 63 माइनस 64 द आंसर इज -1। तो ये अगर स्क्वायर फॉर्म में तो 1 का स्क्वायर फॉर्म हम ऐसे ही लिखते हैं, दैट इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1। नाउ सी यहाँ पे ये 2 कैंसिल हुआ, ये क्वांटिटी हमने ऐसे ही लिखी है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑलरेडी ले लिया है। तो ये टर्म सिर्फ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने वो कंटिन्यू कर दी। आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है दैट इज़ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउ सी लॉग एक्स एज इट इज़ दैट इज़ एक्स माइनस 8 प्लस ये टोटल, अभी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ से आया है, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस 6। सो दिस इज द answer of this example. Now the 7th example is same that of the example number 6. तो क्या है, मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। सो रूट 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। सो 9 माइनस एक्स जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, सो वो हमें हटाना है। तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था दैट इज़ x माइनस 7 को हमने टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 माइनस एक्स से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर विल गेट अ स्क्वायर एंड द रिमेनिंग एग्जाम्पल वी हैव टू सॉल्व सेम दैट ऑफ द 6th एग्जाम्पल। यहाँ पे हम क्या करेंगे 9x और x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और जो फॉर्मूला है उसी तरह से हमें ये आगे कंटिन्यू करना है। तो ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे। Now we are going to start with the example number 8. So in the example number 8, here we see the trigo type of example. So integration of 3 cos x upon 4 sin square x plus 4 sin x minus x. तो पैटर्न तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे हम sin x को हम t कंसिडर करेंगे। So differentiating we get that is the derivative of sin x is cos x dx is equals to dt. Now we are going to put down this value. Now see ये जो cos x dx हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में, इसके लिए हम पुट डाउन करेंगे dt। तो मैंने यहाँ पे dt लिखा है, 3 is as it is and 4t square plus 4t minus 1. Now we are taking this 4 outside. तो 3 upon 4 integration of 1 upon t square minus t minus 1 by 4 dt. आफ्टर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। जब भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पैटर्न दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म कंसिडर करेंगे एंड थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t ब्रैकेट स्क्वायर। तो हाफ इंटू 1 ब्रैकेट स्क्वायर, द क्वांटिटी इज़ 1/4। तो अब यहाँ पे हम 1/4 ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 ऐड किया, ये माइनस वाला 1/4 ऐसे ही रखेंगे हम जो एग्जाम्पल में है, और ये जो ऐड किया उसको हमने सब्सट्रैक्ट किया। नाउ ये 3 क्वांटिटी, ये 3 टर्म्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो बाकी के टर्म्स एज इट इज़ दैट इज़ 3/4 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन येस द स्क्वायर रूट ऑफ t इज़ t, द साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म। सो t प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस 2, सो द एलसीएम इज़ 4 and yes -1 that is -2, so 2 2s are 4, so here we get 1/2. तो अब ये क्वांटिटी अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो हमें 1/2 भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो 3/4 ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किए अब तक
7 तक वो पैटर्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये पैटर्न भी हमने लर्न किया है ऑलरेडी। तो 1/t प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। सो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो इसको हमने वैसे लिखा। एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। तो नाउ दिस लुक्स लाइक द फॉर्मूला दैट इज 1/x² माइनस a²। एंड द फॉर्मूला इज, every time you have to write down the formula whenever you use it in the example. It is 1/2a log x minus a upon x plus a plus c. तो ये 3/4 ऐसे ही रहेगा। 1 that is 2a, तो 2a का वैल्यू है 1/√2 log a x minus a, that is x क्या है यहाँ पे, ये that is t plus half minus 1/√2 upon x plus a। तो x है t plus half plus 1/√2। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस 2√2। अभी डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दो अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 है और एक √2 है, हमें दोनों को भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2√2। अभी ये यहाँ पे कैसे होगा, दैट इज ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो है 1/2/√2। तो ये √2 ऊपर जाएगा, अपॉन जो है वो 2 है, तो उस 2 को, ये देखो मैं फिर से यहाँ पे बता दी, यहाँ पे जो नंबर है वो इस फॉर्म में, दैट इज़ 1/2/√2। तो ये सॉल्व करके कैसे आएगा, √2/2। अब ये इस 2 को भी हमको कैसे लिखना है, √2/2 इंटू √2। तो इस 2 को हम इस तरह से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है √2 इंटू √2। नाउ दिस √2 इज कैंसिल विद दिस √2। तो यहाँ पे टोटल क्या फाइनल आंसर मिला हमें, 3/4√2। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉग। तो अब हमें यहाँ पे हर एक टर्म को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2√2t प्लस whenever we multiply this half by 2√2, then this 2 will get cancel and हमें मिला that is √2। यहाँ पर भी हमें 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। सो √2 विल गेट कैंसिल एंड वी गेट हियर -2। नीचे भी वैसे ही करना है, दैट इज 2√2t प्लस √2 प्लस 2। एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t, दैट इज sin x। सो 3/4√2 log 2√2 sin x प्लस √2 minus 2 and upon 2√2 sin x plus √2 plus 2. So this is the final answer of the example number 8. Now we are going to see the last example from this exercise 3.2c, example number 9. Integration of root 9 e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1 dx. Now see, in this example we are going to take e raised to 2x as a common. तो हमने e raised to 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 है तो उसमें से 2x बाहर है, तो यहाँ पे x 1x बैलेंस हुआ। तो e raised to, एक्चुअली ये कैसे लिखते हैं, दैट इज़ e raised to 3x का मतलब क्या होता है, e raised to x raised to 3 एंड यहाँ पे क्या होता है e raised to x स्क्वायर। तो हमने ये कांस्टेंट बाहर निकाला है, तो इसमें से 2 अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बैलेंस रहेगा, ओनली e raised to x बैलेंस रहेगा, -1 अपॉन e raised to x प्लस 1। मैंने यहाँ पे लिखा भी है e raised to 2x का मतलब क्या है। नाउ ये जो है दैट इज़ e raised to 2x का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, दैट इज़ e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर, ये मतलब ये है। तो स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो ये बाहर आएगा। तो e raised to x यहाँ पे आया, इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट ओनली देयर इज e raised to x -1 अपॉन e raised to x प्लस 1। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, e raised to x को हम t कंसिडर करेंगे। तो e raised to x इज इक्वल्स टू t हम कंसिडर किए। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दैट इज e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x dx रहता है इज इक्वल्स टू dt। तो e raised to x dx हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ हियर वी पुटिंग दैट इज रूट e raised to x मतलब t -1 अपॉन t प्लस 1 एंड ये जो टोटल क्वांटिटी है इसके लिए हमने कंसिडर किया dt। तो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है वो हमें हटाना है। तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है t -1 उससे हम इस टोटल एग्जांपल को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो t -1 यहाँ पे आया, t -1 यहाँ पर भी आया। तो t -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में स्क्वायर है तो वो हट गया, और यहाँ पे क्या आया t -1 अपॉन रूट
ये जो एक्सपांशन है हमें ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे लिखा है, सो ये किसका एक्सपांशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं टी स्क्वायर, हमने ये जो फॉर्मूला सीखा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, टी स्क्वायर है, ओनली टी स्क्वायर है, क्योंकि वन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t आएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ t है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको सेपरेट करने वाले हैं। ये t अलग रहेगा और ये 1 को हम सेपरेट करने वाले हैं, लेकिन मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, लेकिन यहाँ पे सिंगल t है, तो यहाँ पे मुझे 2 लाना है, तो मैंने ये 2 ले लिया और उसको कैंसिल कर दिया। अभी 2 गेट कैंसिल, तो ओनली t यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर ली फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था, इसलिए हमने ये एडजस्टमेंट किया। और ये -1 हमने सेपरेट किया, -1 अपॉन डिनोमिनेटर सेपरेट किया हमने। नाउ व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन, यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा है, दैट इज़ 2 रूट एफ ऑफ एक्स। एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज़ लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करके हमें मिला है, दैट इज़ हाफ, ये बाहर रखा मैंने, 2 रूट एफ ऑफ एक्स, so 2 रूट एफ ऑफ एक्स, तो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस लॉग टी एज इट इज़ प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। Now we are going to put down the value of t. So what is t? T is nothing but e raised to 2x. तो e raised to 2x, it is e raised to x. यहाँ पे मैंने लिखा है t is e raised to x. तो मैंने यहाँ पे e raised to x लिखा, लेकिन ये जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो e raised to x का स्क्वायर मतलब क्या है, e raised to 2x माइनस 1 का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे लॉग t का वैल्यू है e रेस टू x, यहाँ पे वो स्क्वायर फॉर्म है, e रेस टू x का स्क्वायर मतलब e रेस टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस a. So this is the answer of the 9th example, and here is the end of the exercise 3.2c. In next lecture we will going to see the new concept. Thank you.